स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर हो रहा है हो रहा है। ये नंबर भी काउंट हो रहा है नीचे मैंने ओके। क्या बोल रहा था मैं? परमानेंट ना सिंपल कॉम्प्लेक्स permanent tissues. Okay, mesomatic tissues done. Permanent tissues. Permanent is categorized into two parts, that is simple and complex. complex. Okay. What is the basis of categorization? The simple is divided into three parts. What is the basis of categorization? It should be some basis, na? On the basis, whenever we categorize, we have some basis. On the basis of Sir, divided on the basis of their functioning. functioning, no. सर स्ट्रक्चर Hmm? सर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर All tissues have some special structures. सर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा Complex. What is complexity? सर तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि सर उसको कई टिश्यूज जो है एक के आसपास Key tissues. That is many tissues. Means two or more than two tissue comprises to form complex permanent tissue. And it's simple understood, that is they have some specific function. All tissues have a specific function, so it has also some specific functions. Is it clear? It is for the complex permanent tissue. Okay. And what about simple? The only one kind of tissues are only one kind of tissues from the simple tissues. Now simple tissues have three different parts, that is parenchyma, parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. Okay. So you can understand first. सर कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप बता रहे थे उसमें कि दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलके बनते हैं Okay. सर एक क्वेश्चन है कि एक ही टिश्यू क्या है कई बार लेयर बना के No, you have to write down, na? I think so. Two or more than two tissues. Two or more than types of tissue. We should have to write there. Types. Okay. Two or more than two types. I think ये छूट गया था उसमें, है ना? यस सर टू टाइप्स. जैसे सिंपल पहले इसी को देखो. सपोज इन प्लांट्स इट्स वेरी सिंपल, दैट इज xylem and phloem. Xylem tissues formed of four type of tissues, that is vessel, tracheids, xylem, parenchyma and xylem, sclerenchyma. Same as there are also four types of tissues are there, that is seed tubes. What is the spelling of seed tubes? S-I. यस सर S-I-N-D. Okay. Seed tube, companion cell, phloem, parenchyma, phloem, parenchyma and phloem, sclerenchyma, sclerenchyma. Okay, I am writing it. सर फाइबर्स भी तो होता है.
cell fibers. Okay. The sclerenchyma is another terminology is xylem fiber, phloem fiber. These are the four tissues, four types of tissues. These also have four types of tissues. Okay. Out of three type of tissue in this complex permanent tissue are dead. Yes, are dead. And out of three tissues of these complex permanent tissues are alive. Okay? Clear? सर विचार आ रहा है विचार में इसमें 3 डेड हैं 4 में से और उसमें 3 जिंदा है 4 में से। चलो कौन से जहां पे भी स्क्लेरेंकाइमा है वो डेड है, जहां पे भी पैरेन्काइमा है वो डेड जिंदा है। अच्छा ठीक है, बाकी ट्रैकिंग्स वेसल्स डेड वेसल्स डेड, ट्रैकिड्स डेड, तो 3 तो डेड हो गया। हां फोर्थ वन इज अलाइव। थर्ड बचा कौन? पैरेन्काइमा, जहां भी पैरेन्काइमा होगा वो अलाइव होगा। क्लियर है? सर पैरेन्काइमा को कुछ जैसे स्क्लेरेंकाइमा को फाइबर बोलते हैं, वैसे पैरेन्काइमा को भी कुछ बोलते हैं। नहीं, और बोलते तो देखिए होगा तो मुझे बताइए, मैसेज कीजिएगा। हाँ, बताइएगा क्या बोलते हैं। देन आई विल सी व्हाट आर देयर। ओके, so these are three tissues there, one alive, and here 3 alive: CPU, Trophonian cell, phloem parenchyma. These 3 alive, and these are this one is dead. These all comprises phloems. These all comprises xylem. The function is to conduct water and minerals, and the function is to conduct food and hormones. Okay. Okay. Now let me complete the from starting we are again try to clear all the concepts. Now this is the simple permanent tissues. There is the parenchyma. Okay. And sclerenchyma and sclerenchyma. There is two more. Go or parenchyma. This is part of parenchyma. That one is the part of parenchyma. Okay, I will tell you later. Okay, just first understand what is parenchyma. So many features, but whenever you study about tissue, to focus on three points. One is characteristic features. Second is structure, and third is very good. In previous class we had discussed about that. Let's first understand about the structure. Okay. Parenchyma is generally oval or polygonal in shape. Okay. Generally oval or polygonal in shape, found in soft part of plant, large vacuole. सबके सेल वॉल होते हैं इसके सेल वॉल इसके ठीक होते हैं Good. Thin cell wall. सारे सेल वॉल अगर प्लांट का अगर कोई सेल वॉल है
तो क्या होगा, सेलुलोज नहीं बना होगा. Okay, it's a characteristic feature for the plant tissue. If cell wall is formed of peptidoglycan, it will be bacteria. Its wall is formed of chitin, it will be fungus. Are you getting my point? So these are the characteristic features. We studied about the 5 kingdom classification system, which was given by the Whittaker. That time I explained all the things. Okay, so if cell wall is formed of cellulose, this is considered as plant cells. Okay, so here is the matter is thin or thick. This may vary from tissue to tissue or plant to plant. Okay, thickness according to the function, according to the climatic conditions. Okay, they may be thick or thin, but formed of cellulose. Okay, so thin cell wall should be right here. Okay, now large vacuole. Here is a large vacuole. Vacuole काफी बड़ा होगा इसका. And any 1, 2, 3. They have Sir, loosely packed cell. Loosely packed. yes, loosely packed, living enough intercellular spaces. Not up spaces. Okay. What about loosely packed? Okay, they have enough intercellular spaces. Now, as you have actually these are the points, and according to these points, we should have to draw structure. Okay. Sir, उसमें cellular space क्यों होता है? बताते हैं. हर चीजों का अपना एक है. Now, draw generally oval or polygonal in shape. I draw here oval, oval in shape, spherical in shape, thin cell wall. Okay. So here are some spaces. This is look at here. These are spaces now. These are the spaces loosely packed. These facilitate exchange of gases. These facilitate exchange of gases. Loosely packed, leaving enough intercellular spaces. Okay, I will write here again. Loosely packed cells leaving enough intercellular spaces. Okay, so here is the structure. Look at here. This is the intercellular space. These are almost oval spherical shaped cells, and they have large vacuole. They have large vacuole. So almost nucleus pushed at the marginal region. Okay, of cell membrane. So same kind of structure here, there, all cells acquire. Okay, large intercellular, large vacuole, thin cell wall, and
कैपिटल सेलुलर स्पेसेस। सर सेल वॉल थिन होने का भी कुछ कारण होता है। सेल वॉल थिन होने का भी कुछ कारण होता है। यस ऑफ कोर्स, सेल वॉल थिन होने की वजह है जहाँ बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस, जहाँ हार्डनेस चाहिए तो वहाँ पे आपको सेल वॉल थिन रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर सेल वॉल थिक हो गया तो स्क्लेरेंकाइमा वो जो होता है कंपोनेंट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा अगर थिकनेस बढ़ेगा उसका जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है अकॉर्डिंग टू तो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, तो इनके बीच दे नॉट अलाउ easy exchange of materials also, okay. They have pits also to exchange the material, but this will facilitate more facilitation for the provider. सर ये जैसे कि लीफ भी तो प्लांट एक पार्ट है, तो उसमें पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। All the soft regions contain parenchyma. लकड़ी शुरू में काटो जल्दी कटती है, थोड़ी देर बाद दिक्कत होता है काटने में। पैरेंकाइमा कट गया ना, अब दूसरे टिश्यूज आ रहे हैं वो हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द थिन सेल वॉल। बात समझ में आ रही है? बिकॉज दे अलाउ ट्रांसपोर्टेशन, they allows actually they also involve in transportation. They involve xylem parenchyma निकल से ही है ना in complex permanent tissue. We studied about the xylem parenchyma, xylem phloem parenchyma. What are they? They also contribute in transportation and to fill up the ground tissues. सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो स्टेम होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है उसके नोड पे पैरासिम्पैथिक टिश्यू उसका नोड पे, सर उसके नोड पे कौन सा स्टेम के नोड पे कौन सा पैरासिम्पैथिक टिश्यू होगा? नोड पे इंटरवल सर पर इसमें तो लिखा है कि नोड पे एपिकल मेरिस्टेम होगा। कहाँ लिखा है? इधर मेरे स्टेम ऊपर टॉप होगा। एपिकल मेरिस्टेम तो सर टॉप का होता है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है। कहाँ लिखा है? नहीं सर, ये तो है। ये एपिकल है, ठीक है। तो काट दो तो यहाँ से ब्रांच निकल जाएगा। This is known as apical dominance. You will study in higher classes. Okay. Study on higher classes. उधर से apical dominance is a feature you will study in higher classes. Okay, when we cut actually continuous row of apical meristem is inhibit the lateral branches. That is why we cut for the hair making in जो गार्डनर्स है वो देखना है जैसे झाड़ियाँ टाइप का बनाना होता है, ऊपर वाली चीज़ों को काटते हैं ताकि इधर इधर से फैलता जाए। कहाँ से? इंटर कॉलोनी मेरिस्टेम को काम करने दिया जाए, ठीक है। इधर वाले एपिकल मेरिस्टेम जो है इंटर कॉलोनी मेरिस्टेम को क्या करता है? सप्रेस करता है, ठीक है। तो ऊपर का जब ऊपर का मेरिस्टेम काट दिया जाता है तो फिर यहाँ से ब्रांचिंग निकलने लगता है। तो आप देखते हैं जैसे गार्डन में ऐसे नहीं बना होता है, पेड़ पौधा फैल जाता है, अलग अलग डिजाइन का बनाते हैं यूजिंग सच फेनोमेना। ओके, so these are some features and these are the simple structure. Clear? Parenchyma. Function? सर Tell me about the function. सर जैसे कि कोई प्लांट होता है तो उसकी शुरुआत में लीफ नहीं होते, फिर धीरे धीरे लीफ जो होते हैं निकलने लगते हैं कई सारे। सर वो लीफ जैसे कि कैक्टस में क्यों नहीं होता? कैक्टस तो लीफ होता है ना, सब होता है। The spine actually leaf modified into spine in cactus. Okay. These are the climatic adaptation. But the leaves are very. Huh? So ये characteristic feature है वो structure If you consider onion, where is leaf? The edible part is leaf. Onion का leaf खाते हैं। So but the leaves comes out now when we grow. Huh? Leaves come out now when we grow. Yes, leaves come out, and after harvesting the bulbs are there, onion bulbs you using in your home. Okay, that is also a
That is also a part of leaf. Okay. Suppose this is onion, na? Like this. Here this. This is onion. Yes, sir. Hmm? Yes, sir. The edible part is known as onion bulb. Like this. सर कभी-कभी ऑनियन के सेंटर में से सब ग्रीन Yes. That one is. Here is the stem. सर वो रूट होता है ऑनियन का जो हेयर टाइप निकला रहता है यहाँ बीच में स्टेम है, हाँ, ये किनारे जो आप खा रहे हैं हाँ। ये लीव्स है. Actually these are the modified leaves. That is cut. And sir, which comes out, what is that? हाँ? जो हम जब ग्रो करते हैं तो जो बाहर वही स्टेप ग्रोथ होता है ये grow कर गया ना? This stem grows. This stem grows to form leaves again. Yeah, that leaf. वो भी तो leaf. That is also a leaf. That is also a leaf. okay. Now, Garlic also. sir, Garlic also. Garlic बोलते हैं क्या? लहसुन. लहसुन को क्या बोलते हैं? लहसुन को गार्लिक बोलते हैं हाँ. अदरक को जिंजर मेरे को भी कंफ्यूजन होता था सर जिंजर और गार्लिक No problem. लेकिन अब पता चल गया Okay, leave it. No matter. Come to the point. हाँ? Revision layer. Keep quiet. Exchange, especially transportation and exchange, because there is lots of special gases exchange possible. Okay, gases exchange possible. सर तो स्टैंड क्या जरूरत है कैसे सर लीफ को नहीं क्या होता है All the parts. Actually, in plant, leaf, stem, and root respect separately. Are you getting my point? All parts require their gaseous exchange mechanism. Are you getting my point? Gaseous exchange, diagram involved in the transportation of water and mineral transportation. Phloem is for the food transportation and hormones. You can say plant growth regulators. सर हर वेजिटेबल और फ्रूट्स में उसके सीड्स होते हैं ऑनियन में क्यों नहीं होता है Onions में भी सीड होते हैं ना. फ्लावरिंग प्लांट है, ओनियन का फूल भी होता है. सर हैं? जो कहते हैं फ्लोएम होता है वो हार्मोन्स को ट्रांसफर करता है सर पूरे कहते हैं प्लांट्स के Food along with food, hormones they will सर एक क्वेश्चन है transfer. हार्मोन जैसे तो वैसे उसी तरीके से अगर प्लांट जो मॉडिफाई होगा अपने तरीके से मान लो या अगर सबको- उसके हार्मोन्स को चेंज किए जाए तो प्लांट भी अपना मॉडिफिकेशन कर लेगा Of course, modification करेगा. सर प्रोटीन सर According to hormone, what is the function of hormone? It is specialized function. Some hormone involved in cell elongation, some hormone involved in cell division, some hormone involved in to keep in dormancy, वो उगने ही नहीं देगा, जर्मिनेट ही होने नहीं देगा. मान लो आपका कुछ आलू खराब होने वाला है और इस साल कोई खाने वाला नहीं है, तो सीजन आएगा तो वो सब जर्मिनेट होने लगेगा. तो आपको एक हार्मोन से ट्रीट करना पड़ेगा उसको, है ना. उसको डोरमेंट कर देगा तो इस साल उगेगा ही नहीं वो. बात समझ में आ रही है? या फिर आपको तुरंत उगाना है तो उसको आपको फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा तो जर्मिनेट होने लगेगा. बहुत सारी चीजें लंबा करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, पकाने के लिए एथिलीन गैस यूज करते हैं. याद है केला वाला कैसा पकता है? इथेनॉइड नाम का गैस, इथेनॉइड नाम का एक केमिकल यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, उसको छीट देते हैं. वो इथेनॉइड केमिकल क्या करता है, बाद में गैस एथिलीन गैस प्रोड्यूस करता है. दिस एथिलीन गैस फैसिलिटेट फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स. जितने भी केला खाते हो सब तो गैस से ही पकता है ना. ये सारे सर लोग वो नेचुरल नहीं होता नेचुरल नहीं होता कोई इंतजार नहीं करता ना. नेचुरल पका हुआ केला कैसे लेके आओगे यहाँ पे? तुम तो केवल उगा धान गेहूँ, खेती करना तो आता नहीं है लोग को. धान गेहूँ उगाते हैं बस, केला कहाँ से आता है?
कोई एक आध जगह से आता होगा, महाराजगंज कहीं पे बाहर से, केरला। है ना। पका वगैरह ट्रक में ले जाओ, पचक जाएगा सब। कच्चा कहलाता है, देखना ट्रक से उतरता है, फिर उसको क्या किया जाता है, सर गोदाम ऐसा में भी ले होगा कि सर, कहीं वो दिन सर, तक रखा जाता होगा तो अपने आप ही राइप हो जाता होगा। Yes, of course. Plant fruit also have mechanism to produce ethylene, but the cause is ethylene for the ripening of food. Are you getting my points? सर तो हम लोग जब उसको आर्टिफिशियली लाइफ करते हैं तो कुछ इससे नुकसान होता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। वही कार्बोहाइड्रेट में डालते सर हैं। केले का प्लांट होता है, वो पूरा उसके जो स्टेम होता है वो हार्ड नहीं होता, तो उसका मतलब ये पूरा पेरेंशियस बना है केले का वो जो स्टेम Almost of the part, most of the part. उसमें पेरेंशियस होता होगा। स्क्लेरन क्या है केले में? क्योंकि सर उसके उसमें जाना पड़ेगा, आपके उसके रूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब केले का जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीनिश पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लीव्स। Yes, sir. They are also very. वो भी बहुत सारे ऐसे primordial like that, like leaves. These are also part of leaf. Actually, you see like stem. This is a that was सर that उसमें one is दाग leaf. भी होते हैं। The stem is क्या होता है? underside, bottom, अरे मतलब under the लकड़ी under होते the. हैं। सर हाँ सर लीफ हर जगह होती है। हाँ जी, वो पूरा जो पार्ट देख रहा हूँ लीफ है वो। सर, स्टेम दिखेगा आपको सर, bottom बनाना side, का हाँ? फ्लावर्स भी बहुत हार्ड होता है, उसके भी सर वेजिटेबल। ओके, बस हम बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अपने पॉइंट से हम लोग भटक रहे हैं, तो खत्म करना है। ओके, पैरेंट क्या है पावर, इतना सारी चीजें लिख देंगे। फंक्शन, नाउ टेल मी द फंक्शन क्विक। Sir, it's provide buoyancy in aquatic- buoyancy, buoyancy की जरूरत कहाँ पड़ेगी, aquatic plant provide buoyancy, okay, and Sir, it also sir, it process photosynthesis. allows photosynthesis. Suppose these parenchyma actually found in the upper part, okay, and no matters, upper part and central part no matters, but in upper part almost parenchyma found, and they bears enough chlorophylls, okay. Some of the parenchyma specialized for the photosynthesis. They have enough chloroplast, and such type of parenchyma is called chlorenchyma. Sir, buoyancy वाले Okay, को- such type of parenchyma have enough air spaces. Enough air spaces. This is intercellular space, and now I am making air spaces. Look at it carefully. Here is like that. I will show you. I will show you air spaces like this. Now, what it will be? Here is the reason. Look at here. This is air space. This is air space. And that one is intercellular. Sir, intercellular में भी तो space होता है, उसमें भी तो air circulate होता होगा। Intercellular space and air space both are different things. Intercellular space we consider space between the cells, and here is lots of cells form a large space. सर जहाँ एयर स्टोर हो सके। Yes, it is for the buoyancy. In aquatic plants, we will see lots of air spaces. It provides buoyancy in aquatic plant. And something more. Function over सर It इट स्टोर stored food, because they have large vacuoles. बनाता होगा। Look at there, the large vacuole is there. It can store large number of food and water also. सर The third function is for storage of food and Provide oxygen to the transportation. Yes. I told you earlier. Huh? Provide oxygen to the aquatic animals. हाँ, ऑक्सीजन तो उनके पास अलग से रहता है। Focus on your textbook. What is written there? Is there any function? वो नहीं रहता पानी में, किसी सर से function तो कैसे? उसका फंक्शन होता है उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। किसका? किसी टिश्यू का। जब किसी को buoyancy tissue होती है, को? plants तो water के बाहर ही रहते हैं। Just.
सर वेस्ट प्रोडक्ट्स So ऑफ this प्लांट्स is tissues. Average बोल रहा है. क्या पूछ रहे हो मुझे ये नहीं पता चला ना, क्लियर पूछ रहे हैं। सर ये बोल रहे थे ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो ना प्लांट जो प्लांट को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? यस, Yeah. ओके। स्टोमेटा से भी स्टोमेटा यू नो अबाउट दैट, लेट मी मेक सर क्वालिटी there is also parenchyma tissue. I told you na, there are lots of species. They provide easy exchange of gas. Okay, suppose leaf, stomata found in leaf also, sometimes stem also. Okay, stem पे भी stomata पाया जाता है, lenticels बोलते हैं इसको, but हम यहाँ पे leaf को लेके करते हैं. Look at here, this is the structure of leaf. Okay. Again you will form. Suppose this is leaf. Leaf T is transverse section. Okay. This is the upper part. These are the middle part, and this is lower part. Some of the tissues. ये जो टिश्यू, ये सम ऑफ द सेल, ये भी क्या था, एक सेल था ना। सपोज ये और ये क्या हो जाएंगे, मॉडिफाई हो गए। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इट फॉर्म स्टोमेटा, ओके, क्लियर? End of these are parenchymatous cells. This also a parenchymatous cell. Such kind of parenchymatous you can say chlorenchyma because enough chloroplast is there because the upper surface receives more of the portion of सर जब visible light. aquatic plants में parenchyma रहता है तो उन aquatic plants के waste कहाँ पे जाते होंगे? Waste कहाँ पे जाता? What is the waste material for the aquatic plants? तो पूछो ना, नाइस क्वेश्चन, बट आई एम आस्किंग यू व्हाट आर द वेस्ट मटेरियल? सर सेल सेल में जो डेड सेल्स हो जाए, जो सेल्स फंक्शन नहीं करते, सेल सेप में डेड सेल कहाँ से आएगा? सेल सेप है कहाँ? सेल के अंदर है, सेल के अंदर दूसरा सेल कहाँ से आएगा? नहीं सर, जैसे जो डेड सेल जो काम करना बंद करते हैं सर उसको डेड सेल्स, किसके डेड सेल्स? प्लांट के। ये सारे डेड सेल्स ही तो काम कर रहे हैं, जब ज्यादा स्क्लेरेंकाइमा बना रहे हैं, फंक्शन नहीं करता सही से, उनको जैसे कि अब डायरेक्ट सेल फंक्शन नहीं करता है उसको सेल डिस्ट्रॉय कर देता है। एनिमल का मेटाबॉलिज्म अलग Sugar है ना? एनिमल हैव स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डंपिंग जोन्स आल्सो, बट प्लांट कुछ नहीं, वो मूवेबल नहीं है, ठीक है? उसके सेल्स जो होते हैं डेड होकर उसी का काम कर रहे होते हैं, फाइबर्स बना लेते हैं, जाइलम फाइबर्स रेसे बन जाते हैं, रेसे। आप सब्जी देखें सब लौकी वगैरह खाते हैं, लाइक लौकी को आप कैसे छोड़ दिए, सुखा दीजिए, पूरा सूख जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, जाके देखिए अंदर क्या है, ऐसा लगेगा कि बहुत सारा जाल पड़ा हुआ है। Yes sir. Yes. उसी में बीज फंसा है, जाल है बहुत सारा। व्हाट इज दिस? दिस इज जाइलम फाइबर्स, डेड सेल्स। These are also included in our balanced diet, that is called nutritional fibers, dietary fibers actually, dietary fibers. It is very good for our health and for forming the bulk of our meal. नहीं होता है, लोग गलत से डाइटरी फाइबर करते हैं जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ रही है ना? सर शुगर सेल्यूलोज ब्रेक डाउन होते हैं और स्पॉन्जेस प्लांट बनाते हैं सर वाटर के अंदर। सर वही उनके वेस्ट ही से बनता है। क्या चीज और बोलो? सर स्पॉन्जेस प्लांट्स नहीं होते हैं सर, जो वाटर के अंदर ऐसे अजीब प्लांट्स बने होते हैं छोटे-छोटे सर, जिसमें फिश अपना मुंह बनाती है। देखो, वो प्लांट्स ही waste वाटर के अंदर जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज, ठीक है?
बहुत कुछ होता है वाटर के अंदर, बहुत प्रकार के प्लांट्स सर होते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर, हम लोग कॉलेज से दिया था स्पॉन्जियस प्लांट। स्पॉन्जियस प्लांट में बता तो रहा हूँ ना, एक रखा हुआ रैप में अभी मैं वाटर है, किसी को देखो कचड़े में पड़ा हुआ है, स्पॉन्जियस प्लांट है, ऐसे दबाओगे दब जाएगा। ठीक है, स्पॉन्जियस मीन्स ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज फाउंड ऑफ पैरेन्काइमा, सिंपल सी बात है। ओके, इतनी बातें समझ में आई क्या? हाँ सर। कैन वी कंक्लूड द पैरेन्काइमा? यस सर। So many points are there to discuss, but this time we are revising the whole concept. साल भर तो कुछ किए नहीं, अब सारे जीके क्वेश्चन ये पूछोगे, महासागर, हिंद महासागर, हैं? सर फोन आ गया। इतना लिख लोगे? I am focusing on the exam point, okay? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, उसके एग्जाम से। फोन आ गया। कॉल आने दो, उसको काट दो। सर एडमिट नहीं किए थे सर। सर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा वीडियो। सेकंड पीरियड ही चल रहा है ना? यस सर। थर्ड पीरियड तो नहीं लगा? सर थर्ड पीरियड में बायो लैब में आ रहा है। पूछ के आएंगे आप लोग, है ना? हाँ तो सर बैक सर जैसे कि टीचर है ही नहीं पढ़ाने वाला। झूठ बोल आप पूछ के आएंगे बेटा। फिजिक्स टीचर थर्ड पीरियड जिसका भी है एकेडमिक इंचार्ज है उससे पूछ लीजिएगा, हाँ? ठीक है सर, पूछ लेंगे। अगर वो लोग अलाउ करेंगे। सर आप पढ़ाइए। ओके, नाउ दिस टाइम इज कॉलेन टाइम, ओके? कॉलेन टाइम, कॉलेन टाइम, ओके? It right spelling? Yes sir. Colin Kaima. Now, Colin Kaima have some flexibility. Actually, it is harder than parenchyma with flexibility. सर लोग Okay, means the cells are. We have to consider first its shape. What is the shape? Polygonal or oval in, यानी सेम लगभग वैसा ही है। Same as parenchyma. सर सारे सेल्स अभी लिख भी ना, देखते जाओ। पेंटा, पेंटागोनल, पॉलीगोनल, पेंटागोनल, these are the shape, in shape, okay? In shape. Second, फ्लेक्सिबिलिटी cell wall is comparatively thick than parenchyma. Okay, cell wall means you can say thick cell wall, Thick cell wall. As compared to that. as compared, very good, as compared to parenchyma. Okay, their cells are lipid. this Their cells are lipid. yes, parenchyma को include कर देना living cells, है ना? इसको हम लास्ट में लिखेंगे living है। सर इंटरसेलुलर स्पेशल असेंबली एब्सेंट। इंटर लेस लिख देते हैं, लेस इंटरसेलुलर लेस और negligible intercellular space। ठीक है, इतनी बात समझ में है? Cell wall at the corner of cell, at the corner of cell, Sir, they often contain few chloroplast. at the corner of cell there is deposition of Extracellular. lignin and Extracellular लिखा है सर। extracellular Cellulose. suberin or pectin, lignin and pectin I think. check first Lignin deposition
here. At the corner of cell wall, actually cell wall, there is deposition of Only lignin and pectin, I think. Actually there is some confusion for me. Okay, सर पैक्टिन होता है. pectin होता है. Okay, pectin, lignin and pectin. Some of the book considered only the extracellulose material. You can write as same or you can write like this also. Okay, clear? इतनी सारी चीजें हुई. Some chloro, some of the parenchyma have some chloroplast. Okay. सर पैरेंकाइमा में भी ऐसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, इसमें कुछ ऐसे पैरेंकाइमा. Some of the reason, सर uneven cell wall, huh, uneven cell wall, contain some of the reason of plant, contain parenchyma which have chloroplast also. For example, sir, for example, Woody plants, woody plants, बड़ी woody plants. वैसे ये लाइन मजेदार नहीं है यार, सर ये बढ़िया लाइन है. parenchyma is made up of pectin and hemicellulose. Actually all the plant cell contain chloroplast. इसमें बड़ी बात कौन सी है? ये understood है. every plant has. बस हमको ये समझना है तो उसके फंक्शंस हो गए ना. कि जो डेड सेल्स है उसमें तो होगा नहीं, बाकी बचे सब में क्लोरोप्लास्ट है, तो ये अंडरस्टूड है, उसको लिखने का क्या बात है. सर parenchyma is made up of pectin and hemicellulose. वो सर Hemicellulose का अरे सेलुलोज लिख देना है. सेलुलोज को एक थोड़ा 25 प्रकार का सेलुलोज पाया जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है. सर इतने कैरेक्टर्स नहीं है. ओके, बात खत्म हो गई ना. तो वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सब में क्लोरोप्लास्ट होता है. बस फर्क क्या होता है, सम ऑफ द टिश्यूज हैव मोर, सम ऑफ द हैव लेस. इट्स ऑब्वियस दैट that type of tissue which are in exposure of sunlight, they may contain more chloroplast. What the special knowledge here? It's simple understood, na? It's but obvious we have to understand. And the lower part, the deeper part tissues, what the need of chloroplast? Light cannot reach there, so no need of chloroplast. So why they contain such type of organism? So comparatively lower chloroplast is there. Okay, the basic information you got. Okay, now structure, what kind of structure should be there? Thick cell wall, you will draw like this, thick cell wall. Okay, now we have to write here some vacuoles, na, smaller vacuole. There should be smaller vacuole. Okay, smaller vacuole. Okay, यहाँ वेक्टर छोटा होगा, है ना. अब यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा पॉलीगोनल ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा, द एग्जांपल आई विल शो दैट विल बी पॉलीगोनल, पेंटागोनल एक्चुअली. ओके, यस बोलो. सर उसकी वैक्यूम स्मॉल नहीं होता है, सर मीडियम है. ओके, यू कैन राइट मीडियम हियर. ओके, comparatively smaller. I have said it's smaller, not small. It's comparative degree sentence, na? Smaller. Yeah. Then parenchyma you can smaller vacuole. Smaller than parenchymatous tissues. Okay, clear? So such type of deposition you will find here is, look at here. ऐसा ऐसे आपको दिखेगा, समझ जाइए क्या, दिस इज parenchyma.
And now this time it's scleral gamma. Okay. Scleral gamma is dead cells. Actually, thick deposition of lignin makes it almost impermeable. ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें क्या हो जाता है, लिग्निन डिपोजिशन हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, impermeable हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लॉक्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा काम करता है मरने के बाद। स्क्लेरल कैमेटिक टिश्यू इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। सर डेड सेल से मतलब कि जो सेल डेड हो गया है कि पहले से ही डेड ही है? अरे कभी जिंदा होगा तब तो डेड होगा। सर तो डेड सेल जैसे कोई भी डेड सेल होता है तो आप देखो तीन चीजें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। ठीक है, तो हम जो बायोलॉजी की बात करते हैं, लिविंग और डेड की बात करते हैं, नॉन लिविंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। नॉन लिविंग क्या है, ये ना जिंदा था ना मरेगा। बात समझ में आ रही है? अब कोई बोलेगा मर गया, डेड और नॉन लिविंग एक चीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। दिस इज डेड, है ना। अब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो बोलेगा दिस इज नॉन लिविंग थिंग, है ना। दिस इज डेड, बायोलॉजी में आएगा तो नॉन लिविंग नहीं, ये डेड था, है ना। कभी लिविंग था, लिविंग के बाद नॉन लिविंग हो जाएगा, कैसे? लकड़ी नॉन लिविंग है? नहीं सर, लिविंग भी तो नहीं है। सर प्लांट लिविंग नहीं है सर, प्लांट प्रोडक्ट है, कभी ये जिंदा था ना। अब आप बोलेंगे पत्थर, स्टोन, स्टोन इज नॉन लिविंग, है ना। ये वुडन ब्लॉक वाज डेड। सर डेड हो गया, हाँ, become dead of, this is a form of the dead part of the plant. It's not a non-living thing in light of biology concepts. Okay, if you consider this aluminium, this is non-living, है। इंग्लिश लिटरेचर में आपके लिए ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है। बायोलॉजी में ये नॉन लिविंग तो है, बट ये डेड हो गया है, नॉन लिविंग में नहीं है। बात को समझ में आ रही है ना? ओके, चलिए सर जो इसका एक बार में एक क्वेश्चन प्लीज, पहले तो पूछने का मेहनत सीखो। एक बार में तमीज से एक आदमी पूछेगा। स्क्लेरल गामा को जो कहते हैं ये जो डेड सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो डेड हो गए थे? पहला क्लास नहीं करोगे तो ऐसे ही पूछोगे ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर। सुबेरिन होता है इसमें, वही तो मैं बोलता हूँ, सुबेरिन होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे प्लांट में आप लोग का प्रैक्टिकल का पार्ट है ये, दिस इज टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। व्हेन आई विल एक्सप्लेन द टीएस ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट, आई विल tell about the suberin. Actually, some of the parenchymal tissues have extra deposition of the suberin. This will make almost impermeable for water. Okay, and this is found in the central region of the stem or root also. Central region. Suppose this is cutting of root. This is cutting of root. So all here you will see epidermis, then cortex, then endodermis, then pericycle. So these endodermal region cells have extra deposition of suberin. ठीक है, जैसे वॉशर होता है ना, जैसे वॉशर लगाते हैं, दो चीजों को जहाँ पे जोड़ते हैं वहाँ पे एक वॉशर लगा दिया जाता है, तो क्या करता है, उसको एयर टाइट कर देता है, तभी ना वॉशर लगता है ना। गैस्किट वगैरह लगता है गाड़ी वाड़ी, है ना। वैसे क्या है, सेल टू सेल जहाँ पे जुड़ा होता है, एंडोडर्मिस का रीजन है, वहाँ पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। ये वाटर रिपेलेंट नेचर का होता है, ठीक है, वाटर को अंदर जाने नहीं देता है। तो इसके अंदर वाटर डायरेक्ट नहीं जाता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म से जाता है। उस मैकेनिज्म को सिम्प्लास्ट करके हम एलिमेंट सर ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई पूरा एकदम जोड़ के बनाया है इधर से
पागल हो रहे हो? अभी अपने बॉडी का इंजीनियरिंग देखोगे तो बेहोश हो जाओगे। सही बात सर है। इसमें हर चीज के लिए कुछ ना कुछ है। सर ये तुम कैसे पॉसिबल हुआ समझने में? नेचर एक दिन में नहीं बना। कोई ठीक? अभी तुम्हारे क्यों आंखों में इतनी इंजीनियरिंग है जितनी इंजीनियरिंग अभी बुर्ज खलीफा बनाने में नहीं हुई। ये सिर्फ अभी आंख की बात बता रहा हूँ। अभी ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। सर बॉडी का जान रहे हाँ? सर बॉडी का मैकेनिज्म समझ लो। बॉडी के मैकेनिज्म को समझ के सारी चीजें बनती हैं। कंप्यूटर कहाँ से बना? दिमाग से बना। बाइनरी सिस्टम, हमारा बॉडी भी तो बाइनरी सिस्टम पे चलता है। अब बाइनरी सिस्टम नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन है कुछ वैसा ही है ना, स्पेशल कोड सिस्टम से तो चलता है। आप ये मोबाइल देखिए, इस मोबाइल को थोड़ी जानता है हमारा दिमाग क्या है। इस मोबाइल की वजह से आपकी आंखों में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, उस इंपल्स को जनरेट करके हमारा दिमाग कैटेगराइज किया, यस ये मोबाइल है। कभी कभी इसी में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पागल है, वो नहीं जानता है, उसका कोडिंग नहीं समझ पा रहा उसका दिमाग, तो मोबाइल को मोबाइल नहीं समझेगा, है ना, उठा के फेंक देगा, वो 10,000 50,000 नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो इंपल्स जनरेट कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन उसका दिमाग नहीं कर रहा है। उसको हम सब बोलते हैं मनोरोगी, कुछ अलग 50 प्रकार के साइकोटिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ना पागल है। ब्रेन उसके पास नहीं है, पागल कहाँ से है भाई? दिमाग उसका भी काम कर रहा है, तो पागल कहाँ से है? द इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म डिस्ट्रॉयड। ओके, कोई लोग ऐसे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उसका दिमाग उसको इंटरप्रेट एक साथ नहीं कर पाता है। एनडीए के एग्जाम्स देते हैं ना, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है। क्यों? बोलता है आई नीड सम कैंडिडेट, सच कैंडिडेट व्हिच हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टी डायमेंशन, कई चीजों के एक साथ सोचने की क्षमता हो, वैसे बच्चे उसको चाहिए। उसके लिए वो ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करता है, पूछता है, जो बनाता है उसको सिलेक्ट करता है, जो नहीं करता उसको नहीं करता। अब बाद बाकी यहाँ बैठे लोग एनडीए का तैयारी करा रहे, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, सब पढ़ लो, कुछ पढ़ लो नहीं होगा जब तक उसका कैटेगरी में फिट नहीं होगे, 5 चीजों को एक साथ सोचने की क्षमता पैदा नहीं होगी। जैसे हम लोग जनरली क्या 2 डायमेंशनल चीजों को ज्यादा समझते हैं। सर टाइम हो गया, कर नहीं लगी। 5 मिनट टेस्ट पढ़ लो। ना मैं दूसरा बंद हो रहा है, टाइम हो गया। ओके, सी यू, कल मिलते हैं। Sclerenchyma is also dead cell because of the deposition of lignin. Okay, the material exchange block and cell get dead. ना ऑक्सीजन मिलेगा ना फूड मिलेगा, देन कैसे अलग मतलब नहीं अलग कर पाएगा ना, इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। So these dead cells form the structural support, mechanical support for the plant. Sclerenchymatous tissues आप लोग पढ़े, वही पढ़ रहे हैं ना। This is form of the sclerenchyma. All cell are almost dead. Okay. No protoplasmic content, इसके अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है। जब आप लोग जाइलम प्लांट पढ़ेंगे तब इसकी बातें समझ में आएंगी आपको। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे ऐसे बस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये सेट रहेगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, डेड है। थोड़ा थोड़ा बाकी पढ़ लेना, ठीक है। सर आपका